Hello everyone, this is Sumit Chaturvedi, and today I'm in conversation with Parul Gupta. Parul Gupta is a practicing lawyer before the Supreme Court and the National Green Tribunal. She deals in diverse environmental issues across India and holds expertise on matters ranging from environment and forest clearance processes to environmental pollution, waste management, mining, among others. She is also the legal advisor of Vindhyan Ecology and Natural History Foundation. So today we are going to talk about the Environment Protection Framework of India and more specifically about the EIA draft 2020, which is in conversation these days a lot because of all the controversy surrounding it and also because a lot of people are concerned about its provisions. But our aim is to not just look at the EIA draft but also get a sort of a wider picture about the environment protection framework of India, just to get the background of it and also the current situation. So first of all, I would like you to explain a little bit about the environment protection framework, right from the Mhm. Environment Protection Act. Just give us a brief historical background and how does EIA figure in this entire framework? Okay, so let's start from the very beginning. जब जब बहुत शुरू की बात करें, अगर Hmm. हम 1960s की बात करें, जब environment protection की ज़्यादातर कोई बात करता नहीं था. So basically, those days were the time when our country was also going through a transition phase. जब हम agriculture से industries की तरफ आ रहे थे. And there was a substantive decline in environmental quality, like rapid phase हो रहा है industrialization का. बहुत सारी chemical industries उस समय आई, pesticides का काम शुरू हुआ. And almost, I think, not only in India, but almost in all the countries over the world, बहुत ज़्यादा industries पे focus होने लगा था. So, Right. ऐसे टाइम में आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन वी डिडंट हैव प्रॉपर रेगुलेशंस एट ऑल. हम पता भी नहीं था कि एनवायरनमेंट कोई लॉ की भी बात की जाएगी कभी एनवायरनमेंट पे. और होते होते 1972 which is the most significant year of where environment protection and prevention was actually talked about in the world was the Stockholm conference. और 72 में जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आई तब नेशंस को बोला गया कि वो प्रमोट करें एनवायरमेंटल क्वालिटी, अपने अपने कंट्रीज में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं. And while our country was also undergoing the similar phase of like what laws should be made, what regulations should be made, 84 में we were struck with the Bhopal gas tragedy, right? Right. So Right. उस समय ये situation create हुआ कि बहुत ज़्यादा लोगों ने बात करी कि अभी तक इस तरीके के कोई लॉज नहीं बनाए गए हैं. एंड दे वर नॉट वेरी appropriate laws to focus on settlement of claims with the victims of pollution or the environment safety norms. So in सबको देखते हुए we actually enacted the Environment Protection Act in 1986. 86 से पहले का ये सिनेरियो रहा. 86 के बाद जब ये एक्ट आया है उसके बाद मैं कह सकती हूँ yes there has been a beginning because people started focusing on environment. They started thinking environment as a priority subject कि नहीं, बाकी जब हम लॉस की बात कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट का भी अब एक लेजिस्लेशन है और ये एक बड़ा जनरल लेजिस्लेशन है. इसके अंदर बहुत कुछ है. इट गिव्स अस अ वेरी वाइड पावर. जो एक कनेक्शन होना चाहिए ह्यूमन का एनवायरनमेंट के साथ, उसकी सराउंडिंग्स के साथ, उस पूरे जो वाइड स्ट्रक्चर है हमारी सराउंडिंग्स का, उसको ये कवर करता है. कोर्ट को बहुत जुरिस्डिक्शन देता है. And of course, there was also awareness among the people that now because there is an act, there is a law, therefore we should now we should think about कि अगर हम किसी भी तरीके का environment पे कोई भी adverse impact होता है या कोई भी ऐसी activity होती है जो खराब कर सकती है, तो उसके लिए अब एक legislation बन चुका है जो इस चीज को cover करेगा. And maybe it has a punitive measure, a measure of which should prevent and control pollution. So this was one of the thing. Also, environment को उस समय 86 के बाद का अगर मैं सीन बताऊं, 90s में जब हम आए, कोर्ट का भी जो एक अंडरस्टैंडिंग है एनवायरनमेंट के प्रति वो चेंज हुई. Because environment was then being taken as a constitutional issue, not only as a issue of a statutory issue कि एक एक्ट है और उस स्टैट्यूट के अंदर हम कवर करते हैं, लेकिन
it also became a constitutional issue. It's a fundamental right. Right to life, right to our surroundings, right to have a healthy environment is is a fundamental right. So this is kind of एक brief historical background है. अब इसके अंदर EIA कैसे आता है? Like how EIA was introduced. तो बेसिकली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर काफी सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो इस तरीके के रूल्स को बनाए जो कि अबेट, प्रिवेंट और कंट्रोल करता है पोल्यूशन को. इसी तरीके का EIA एक स्ट्रक्चर है, बट द थिंग इज दैट EIA कभी भी एक मैंडेटरी प्रोसीजर नहीं था. इन 1970s when we talk about 76, 77, प्रोसीजरली सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस EIA किया जाता था और उसके बेसिस पे वो लोग EC दे देते थे. लेकिन अगर मैं पुरानी डॉक्यूमेंट्स देखती हूँ उस टाइम के, तो वो बहुत ही ज्यादा इट वाज अ वेरी कैजुअल प्रोसेस. इट वाजंट लाइक कि EIA ऐसे ही होना चाहिए या ये भी इम्पैक्ट असेसमेंट में A to Z ये चीजें इसमें देनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था. इट वाज लाइक नो, वी हैव टू डू एन इम्पैक्ट असेसमेंट कि कितने लोग डिस्प्लेस होंगे और कैसी सराउंडिंग्स होंगी जिसपे इम्पैक्ट हो सकता है. सो दिस वाज ऑल व्हाट हैपेंड, बट it became mandatory when India participated in the Rio conference, जिसको हम रियो डिक्लेरेशन बोलते हैं 1992 में. क्योंकि जो 92 का रियो डिक्लेरेशन है वो इस बात पे फोकस करता है कि एनवायरमेंट जो है इस तरीके से जो इस समय कंडीशंस हैं उसके लिए जरूरी है कि प्रोजेक्ट्स जो हैं, एक्टिविटीज जो हैं, जो हो रही हैं, जिस तरीके का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उनके इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाए. और उसमें एक और इंटीग्रल पार्ट बोला गया, वो था पब्लिक पार्टिसिपेशन का. बिकॉज इफ वी सी द कॉन्सेप्ट ऑफ द EIA, द कॉन्सेप्ट इज दैट यू हैव टू नो what exactly this project and activity is going to do in the future, right? So उसके लिए ये एक information है. So when we are letting ourselves aware of the impacts, what will happen in the future, it is also important that the people who would be impacted, the human beings who would be impacted because of these projects and activities should also be well informed about those projects. So this was the starting of EIA. 92 में आया, 94 में जाके EIA नोटिफिकेशन को इंडिया ने अपने रेगुलेशंस में मैंडेटरी किया, जिसको हम एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन ऑफ 1994 बोलते हैं. 94 के बारे में थोड़ा सा जरूर बताऊंगी. 94 में जब EIA आया है तो उसमें बहुत ज्यादा कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स नहीं थे. हालांकि उसमें 32 कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स डाले गए थे, पर उसमें कभी भी कैपेसिटी का मेंशन नहीं है. मतलब इफ यू गो थ्रू द 94 नोटिफिकेशन, उसके अंदर सिर्फ ये लिखा गया है कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं या हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं या फिर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इन सबको EIA चाहिए. इट डज नॉट मेंशन द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीजर के अगर प्रॉपर EIA है, लेकिन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल नहीं बोलूंगी. वो होते होते अगर बोला जाए तो 2006 में जाके, जिसको मैं बोलूंगी कि एक बहुत ही बढ़िया लॉ बनाया गया, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाया गया. 2006 में EIA नोटिफिकेशन को अमेंड किया गया, 94 को सुपरसीड करते हुए 2006 में आया. तो आज जब हम बात करते हैं तो हम 2006 की ही बात करते हैं, हालांकि उसके अंदर भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं. सो दिस इज द ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ prior to 2020 what is there. Okay, fantastic. So आपने बात की सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये सारे फ्रेमवर्क बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो इसमें स्टेट और सेंट्रल रिलेशंस का क्या सीन है, वो सिनेरियो है पूरे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के सिनेरियो में, फ्रेमवर्क में, और व्हाट इज द स्पेसिफिक रोल ऑफ स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसीज इन द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क? ओके, सो बेसिकली जिस तरीके से सेंटर में हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसी तरीके से हमारी एक स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे एक अथॉरिटी बनाई गई है, स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, राइट. एक तरीके से इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसके जो फंक्शंस हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जो कि MOEF परफॉर्म करता है सेंट्रल लेवल पर. लेकिन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है. इट्स बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट
but the members are being nominated by the state government on the recommendation of the state. The center does it. सिया का जो एग्जिस्टेंस है अब तक जो हम देखते हैं वो काफी इंडिपेंडेंट ही रहा है, उसमें सेंटर का कोई खास इंटरफेरेंस नहीं होता। और I'll say it is an independent body. However, because it's been constituted by the center government, हम बोल सकते हैं हाँ indirectly, maybe unofficially, कुछ इस तरीके के शायद रोल्स होते होंगे जिसमें थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस का loophole हो जाता है। Right. So, but the relations are quite independent. If we see legally, yes, it is independent. Okay. And do you observe any difference in the actual implementation? Actual implementation में कोई difference आप देखते हैं in terms of the autonomy of state bodies? मैंने इम्प्लीमेंटेशन में बहुत खास फर्क नहीं देखा है। उसका रीजन ये है कि इवन जो सिया के ऑर्डर्स हैं, जो भी उसकी फंक्शनिंग होती है, कंडक्ट होती है, वो चैलेंजेबल है कोर्ट में। तो Okay. सिया भी किसी भी तरीके का एक्शन जो भी लेता है या एक्टिविटी जो भी करता है, वो इट्स वेल अवेयर दैट व्हाटएवर फंक्शंस इट वुड परफॉर्म, if it's somewhere if it is negative or somewhere it is politically interfered with, तो वो वो लोगों से छुपेगा नहीं, लाइक इजीली Right. वो चैलेंजेबल हो सकता है। Right. So coming to the present EIA draft 2020, this is a lot is being said about the changes which it is going to make in the environment protection framework. Can you just give us a broad idea of what are the changes which have already been done between 2006 and 2020, and what have been their impact on the EP framework? Because it is important to know कि अभी जिन changes की बात हो रही है उससे पहले के कौन से ऐसे changes हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट रहे हैं। सो कैन यू जस्ट गिव अ ब्रॉड आइडिया अबाउट दैट? ओके श्योर। मैं कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ रही थी। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैंने कभी भी इतने सारे अमेंडमेंट्स हुए 2006 से, कभी भी उसका मैंने फॉलो अप नहीं किया है। आई हैव नेवर नोन गोइंग थ्रू इवन व्हेन आई डू प्रैक्टिस इन एनवायरनमेंट लॉ, लेकिन इतना सारा अमेंडमेंट और इतनी जल्दी किया जाता है कि इनफैक्ट वो हम भी कई बार उसको स्किप कर जाते हैं, एंड समटाइम्स वी फेस इट बिफोर दी कोर्ट, क्योंकि कई बार मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट और एक्टिविटी की बात कर रही हूँ और सडनली मिनिस्ट्री एक एफिडेविट फाइल करता है, वो कहता है नहीं नहीं हमने इसको एग्जेम्प्ट कर दिया है। सो इट हैपेंस क्वाइट ऑफन। पर हाँ, बहुत अमेंडमेंट्स हुए। कुछ दिनों पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, बहुत अच्छा, और मुझे समझ में आया, मैंने देखा कि 55 अमेंडमेंट्स किए हैं 2006 से 2020 के बीच में, जिनमें से कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं जो कि चैलेंज भी हुए कोर्ट में और क्वैश भी हुए हैं। सो अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं तो 2016 में इन्होंने एक बहुत ही मेजर अमेंडमेंट किया था। सैंड माइनिंग उस समय बहुत ज्यादा हो रहा था कंट्री में, और पहले जो सुप्रीम कोर्ट है या एनजीटी है, उनकी जजमेंट्स ये रही कि सैंड माइनिंग जिस तरीके से किया जा रहा है उसको एनवायरमेंट क्लियरेंस में, उसको इट शुड कम इन द डोमेन, इट वाज एक्चुअली इन द डोमेन ऑफ एनवायरमेंट क्लियरेंस, लेकिन वो इतनी छोटी छोटी माइनिंग लीजेस में किया जाता है कि वो पॉकेट्स ऑफ माइनिंग को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले ये रहा, कोर्ट्स ने बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स निकाले कि नहीं, कहीं पे भी सैंड माइनिंग नहीं होगी, पूरा ब्लैंकेट बैन होगा। पर मिनिस्ट्री ऑलवेज हैव दे ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि हम कैसे कोर्ट के भी इससे बाहर आए, मतलब कैसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स को हेल्प आउट करें। तो 2016 में इन्होंने एक अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट ये था कि 5 हेक्टेयर से 25 हेक्टेयर के बीच के जितने भी सैंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको ईआई और ईएमपी नहीं चाहिए। ये अमेंडमेंट उन्होंने अपने आप से किया, जबकि 2013 में सुप्रीम कोर्ट का भी, 2012 में और 13 में सुप्रीम कोर्ट एनजीटी की जजमेंट्स रही कि सैंड माइनिंग ईसी के डोमेन में आएगा और वो बिना क्लियरेंस के नहीं हो सकता। खैर ये अमेंडमेंट था, लेकिन इसको काफी सारे जो जो अवेयर सिटीजन्स थे उन्होंने चैलेंज किया, एंड इट गॉट क्वैश्ड बाय द एनजीटी। ऐसा ही एक और अमेंडमेंट इन्होंने किया सेम उसी साल में दिसंबर में, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को लेकर, और इन्होंने बोला कि हम, because there is so much of need of residential buildings and to facilitate housing for poor, हम लोग ऐसा करते हैं कि 1,50,000 स्क्वायर मीटर्स तक के जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं उनको राइट। एग्जेम्प्ट करते हैं ईआईए और ईसी से।
So basically this was also something which is very very significant, क्योंकि अभी तक EIA notification 2006 का जो projects 20,000 square meters से ऊपर हैं construction projects, उनको EC के लिए cover करता है। लेकिन ये वाला जो amendment था, इसमें इन्होंने 20,000 से ऊपर, मतलब 1.5 लाख तक का, which is like a very very significant building construction project, उसको इन्होंने exempt कर दिया। ये भी चैलेंज हुआ, उसी साल चैलेंज हुआ इनफैक्ट, और 2017 में आके इसका एक जजमेंट आया जिसमें एनजीटी ने बोला कि जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हमारी कंट्री में होते हैं, जिसका इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट एनर्जी फुटप्रिंट है और इतना ज्यादा कंजम्पशन है लैंड रिसोर्स का, वाटर रिसोर्स का, इट कैन नॉट गो अवे विद EIA एंड EC। सो दिस वाज आल्सो क्वैश्ड। सो इस तरीके के अमेंडमेंट्स हुए। एक बहुत, और एक अमेंडमेंट नहीं बोलूंगी, मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि मिनिस्ट्री हमेशा अमेंडमेंट नहीं करता है। मिनिस्ट्री कई बार अपने ऑफिस मेमोरेंडम और अपने क्लैरिफिकेशन नोट से भी बहुत ही मेजर चेंजेस कर देता है जो कम्प्लीटली कॉन्ट्रेरी होते हैं लॉ के। जैसे उसने एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला, 2010 में भी निकाला, उस समय यूपीए सरकार थी, 2012 में निकाला, और उन्होंने ये बोला कि हम जैसे मैं अगर थोड़ा सा बताऊं आपको, EIA नोटिफिकेशन 2006 का कहता है कि प्रोजेक्ट्स को प्रायर एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना है, मतलब किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू होने से पहले क्लियरेंस लेना है। लेकिन इन्होंने इससे भी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को बेनिफिट करने के लिए एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया, और उसमें लिखा कि ऐसा करते हैं, जो प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुके हैं, वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अगर रिटन कमिटमेंट दे दें कि हम से गलती हुई है या ऐसा आगे नहीं होगा, ये डिक्लेरेशन दे दें, तो हम ये प्रोजेक्ट को अलाउ कर देंगे। Now, this was completely contrary to what the law says, because law does not make any mention of post facto EC. So, ये भी चैलेंज हुआ ऑफिस मेमोरेंडम, और इसको भी एनजीटी ने क्वैश किया। Now the thing is, when we actually see the 2020 notification, तो उसमें कई इस तरीके के अमेंडमेंट्स जो चैलेंज भी होते रहे, जो क्वैश भी होते रहे, वो दोबारा से रिपीट करे गए हैं। वो अलग अलग भाषा में रिपीट करे गए हैं। मतलब अब पोस्ट फैक्टो का मेंशन उन्होंने रिटन डिक्लेरेशन ना करके कुछ कंपाउंडेबल ऑफेंस बना दिया कि इसको हम थोड़ा पेनल्टी अगर वो हमें दे दे तो हम वी विल अलाउ द प्रोजेक्ट, वी विल नॉट cancel the project or demolish the project. So this is the kind of you see the changes, what kind of amendments they have brought into the past. Yeah. So and many of these have been challenged, or NGT has, therefore NGT has played a major role in Yeah. maintaining the status quo of the environment protection framework. Right. And Right. as you are saying that this new draft is trying to bring back those kind of changes again Exactly. through the draft, through the notification itself. Mm-hmm. So do you see that अभी जो NGT अपना पुराना पोजीशन को दोबारा से उसको assert करना पड़ेगा? Do you see that this will also be challenged? Can the draft be challenged in the NGT? ड्राफ्ट को चैलेंज करा जा सकता है, और पहले भी एक मैंने जिस तरह की जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैंने एग्जांपल दिया है, वो पहले ड्राफ्ट ही चैलेंज हुआ था। लेकिन ड्राफ्ट को चैलेंज करने में एक प्रॉब्लम ये आती है सुमित, के कोर्ट ये बोलता है कि ठीक है, आप सबने अपने कमेंट्स दिए हैं, तो ऐसा किया जाए कि जो कमेंट्स हैं उनको मिनिस्ट्री इनकॉर्पोरेट करे, मिनिस्ट्री उसको कंसिडर करे, और उसके बाद वो फाइनल नोटिफिकेशन निकाल दे। सो एक तरीके से हाँ, ड्राफ्ट को चैलेंज करने का बेनिफिट ये होता है कि एटलीस्ट आप मिनिस्ट्री को या अथॉरिटीज को ये साबित कर देते हैं कि ये जो एक्ट आपने किया है, ये जो चेंजेस आप लेकर आ रहे हैं, वो चेंजेस सिर्फ जनरल पब्लिक तक ही वो नहीं है कि आप सिर्फ पब्लिक उसके बारे में शोर मचाएगी या नारे निकालेगी। इट वुड ऑल्सो गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एंड इट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज वेल। पर उस समय कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। कोर्ट कहता है नहीं नहीं, ये तो अभी ड्राफ्ट में है, अभी ये फाइनल भी नहीं हुआ है, ये लॉ नहीं बना है, तो आप इसके बारे में अभी से शोर क्यों मचा रहे हैं? लेट द मिनिस्ट्री टेक एक्शन ऑफ ऑल दोस कमेंट्स एंड इनकॉर्पोरेट इट इन द फाइनल नोटिफिकेशन। दिस इज द मेन थिंग। सो आई थिंक फाइनल को चैलेंज करना, ड्राफ्ट को भी करिए, लेकिन फाइनल को करना एक major significant step है। Okay. Can you give us an idea of how it has been, how the public participation provision has been implemented on the ground over the years, and what are your views about the changes being made in this particular provision in the EIA draft 2020
and also before, if you could just give us an idea. Okay. सी पब्लिक कंसल्टेशन एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट है, क्योंकि हमारा पूरा जो भी ईआईए के ऊपर काम होता है वो इसी पे डिपेंड करता है कि डू पीपल वांट दिस प्रोजेक्ट और नॉट, डू दे वांट दैट दिस प्रोजेक्ट शुड एक्चुअली कम एंड इम्पैक्ट देयर सराउंडिंग्स और व्हाटएवर. सो जब हम पब्लिक कंसल्टेशन की बात करें, पब्लिक कंसल्टेशन को जिस तरीके से डिफाइन किया गया है वो सिंपल वेज में ये कहता है कि वो बहुत ही फ्री हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, एंड it should be conducted in such a manner which should ensure widest possible public participation. मतलब maximum to maximum level of public should participate, should voice their concerns towards the project. और इसके अंदर दो मेजर, मैं थोड़ा सा अगर बताऊं, थोड़ा प्रोसीजर हल्का सा बताना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत जरूरी है लिसनर्स के लिए कि वो सिंपली जाने कि पब्लिक कंसल्टेशन किस तरीके से किया जाता है. एक है पब्लिक हेयरिंग जो किया जाता है साइट पर या साइट के पास में जो जो डिस्ट्रिक्ट होती है वहां पर, और दूसरा होता है जब हम रिटन रिस्पॉन्सेज देते हैं अथॉरिटीज को अगेंस्ट द रेजिंग कंसर्न्स अगेंस्ट द प्रोजेक्ट, जो भी हमें ईआईए के ऊपर हो या कोई भी किसी भी तरीके का अगर हम कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कमेंट देना चाहते हैं. ये दोनों कंपोनेंट्स पब्लिक कंसल्टेशन को कंप्लीट करते हैं. और इसमें ईआईए के अंदर बहुत ही डिटेल्ड प्रोसीजर दिया गया है कि पब्लिक हियरिंग का नोटिस दिया जाएगा, वो एक नेशनल पेपर में दिया जाएगा, एक वर्नाक्युलर में दिया जाएगा, और उसके बाद वाइडली पब्लिसाइज किया जाएगा. मतलब सिर्फ न्यूज़पेपर में नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ज्यादातर विलेज एरियाज में बनते हैं, रिमोट एरियाज में बनते हैं, फॉरेस्ट एरियाज में बनते हैं. लोगों को कैसे पता चलेगा? मे बी देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु डोंट रीड इट. सो इन दैट केस वहां पर ड्रम बीटिंग होगी, होर्डिंग्स होंगे, एडवर्टिजमेंट्स होंगे, लोगों को इस तरीके से बताया जाएगा. एंड देन ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट और जो समरी ईआईए रिपोर्ट है उसको रखा जाएगा पब्लिक ऑफिसेज में, जहां पर लोग उसको आके पढ़ सकें, जैसे जिला परिषद का हो गया ऑफिस या डीएम का ऑफिस हो गया, इस तरीके से. सो ये एक बहुत ही प्रॉपर प्रोसीजर है जो बताया गया है, दिखाया गया है. प्रोसीडिंग्स जब जब पब्लिक हियरिंग होती है, जब कंडक्ट की जाती है, तो वो डीएम के सुपरविजन में की जाती है, और लास्ट में उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, मिनटिंग की जाती है, एंड देन इट इज बीन रेड ओवर टू द पब्लिक, व्हाटएवर हूएवर इज प्रेजेंट. नाउ वी टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन. ये तो एक तरीके से हो गया, ये प्रोसीजर होता है, और प्रोसीजर में काफी सारी चीजें हैं. ये मैंने सिर्फ आपको एक जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड ऑफ व्हाट द Yeah. प्रोसीजर सेज. नाउ किस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन मैंने अपने केसेस में देखा है इसका, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा जो इरेगुलरिटी ईआईए में देखी है वो पब्लिक कंसल्टेशन के प्रोसेस में ही देखी है. सो आई टॉक अबाउट सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेजर केसेस जो मेरे मेरे सामने आए व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. तब मैंने एक मैटर किया था उस समय, और ये छत्तीसगढ़ का एक जिंदल स्टील पावर प्लांट का मैटर था, जिसके अंदर पब्लिक हियरिंग की गई. और अगर हम पेपर वर्क देखें तो पेपर वर्क में बहुत सारी चीजें कंप्लीट दिखती हैं, लाइक देयर इज अ मिनटिंग ऑफ द प्रोसीडिंग जो जिसमें सब लोगों ने अपना अटेंडेंस दिया है और लिखा है कि वी एग्री टू द प्रोजेक्ट, वी सपोर्ट द प्रोजेक्ट. लेकिन और उसमें काफी सारी चीजें थी, मतलब जो ग्राउंड्स थे वो हमने लिए थे कि ईआईए रिपोर्ट को इन्होंने पब्लिक नहीं किया था, पब्लिक ऑफिसेज में नहीं रखा था, लोग उसको पढ़ नहीं पाए, देख नहीं पाए. जो वीडियोग्राफी है, पब्लिक हियरिंग की वीडियोग्राफी की जाती है. तो पहले एक्चुअली जब वीडियोग्राफी होती थी तो आई डोंट नो कब कितना एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी उस वीडियो को देख पाते हैं, या फिर वो लोग इतना टाइम देते भी हैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट के वो लोग देखें. बट जब हमने वीडियोग्राफी उसकी वॉच करी, वी वर स्टन्ड. रीजन वाज कि पब्लिक हियरिंग हुई नहीं. पब्लिक हियरिंग होने से पहले ही जब बिल्कुल शुरू हुआ, वहां पे एक कोमोशन हुआ, और कुछ लोग वहां पर आए, और बहुत भिड़ंत हुई विलेजर्स की पुलिस के साथ, प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के साथ. विलेजर्स ने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को नहीं आने देंगे, हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं. वहां पे रखी हुई बहुत सारी जो कुर्सियां थी वो तोड़ दी गई. लाइक लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड एंड इट्स ऑल इन द वीडियो. एंड इसमें जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी थी, जब वो पब्लिक कंसल्टेशन के बाद जब प्रोजेक्ट अप्रेजल पे जाता है ईएसी के पास, ईएसी ने इस वीडियो को देखा और ईएसी ने कमेंट किया अपने मिनट्स में कि इस पब्लिक हियरिंग को दोबारा किया जाए, रिकंडक्ट किया जाए, ये प्रोसीजरली नहीं की गई.
लेकिन उसके बाद के जो मिनट्स हैं, जो हम बाद में EAC के जो मीटिंग्स हुई हैं, उसमें उस बात का कोई मेंशन नहीं किया गया है कि पब्लिक हियरिंग का दोबारा की गई है, नहीं की गई है। प्रोजेक्ट अप्रेज होता है, उसको EC दे दिया जाता है, एंड देन वी चैलेंज द EC बिफोर द NGT जब हम करते हैं, एंड वी आस्क द जजेस टू एक्चुअली सी द वीडियो बाय देमसेल्व्स। और प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूम में जजेस बैठे और दोनों पार्टीज बैठी और हमने वीडियो देखी, and the judges were they were convinced with the fact कि ये तो बहुत ही ज्यादा खराब था, मतलब ये पब्लिक हेयरिंग तो हम कहीं से मान ही नहीं सकते हैं, इसमें तो पार्टिसिपेशन दूर दूर तक नहीं है किसी का भी। And on this basis the project was suspended, it was the EC was quashed. So Okay. this is how people do it. बहुत साल बाद, ये तो मैं आपको बता रही हूँ जब बिल्कुल 2009 या 10 की बात बता रही हूँ, लेकिन बहुत साल तक यही चीजें रिपीट होती रही हैं। 2016 में मैंने फिर एक केस किया और उसके अंदर एक सिमिलर सिचुएशन आई जिसमें पेपर वर्क पे सब चीजें बिल्कुल ठीक है कि पब्लिक हेयरिंग कम्प्लीटली अच्छे से हुआ है, बट अगेन इन द वीडियो, ये मिर्जापुर का एक थर्मल पावर प्लांट का केस था, वेल्सपिन का। वेल्सपिन इसको बना रहा था, एंड वीडियो में हम लोगों ने फिर वही चीज देखी और हम देखते हैं कि वहां पर in the public hearing premises, there are people, there are men who are sitting with guns, Oh. and there is also police in the premises में पुलिस भी मौजूद है और civilians भी मौजूद हैं जिन्होंने guns ले रखी हैं। And in fact, there are some people who go to the podium to, speak about the project. जैसे अगर कोई अपने कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है, तो वहां पे स्टेज बनाया जाता है, वहां जाके आप बोल सकते हैं। तो वहां पे एक महाशय जाते हैं और वो बोलना शुरू करते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर ये खामियां हैं, EIA में ये खामियां हैं, और तभी उनके पास से माइक ले लिया जाता है, एंड ही इज बीन टोल्ड टू सिट डाउन, you know so all these things have been recorded in the video, and then when we watch it, and then when we ask the judges to watch it, ये एक बहुत ही कन्विंसिंग वो होता है, क्योंकि इसमें जजेस ने बड़ा अच्छा डिसीजन दिया। इसमें उन्होंने एनवायरमेंट क्लियरेंस क्वैश करने के साथ ये बोला कि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। मतलब अगर कोई गन लेके बैठा हुआ है पब्लिक हेयरिंग में, obviously it's going to make a pressure among the people, because people would, before raising a concern, they will think about कि ओ मेरे बगल में अगर किसी ने गन लिया हुआ है, maybe he's somebody, if I'll say something negative, Yeah. he might, do some kind of thing. So this is how public hearing का procedure, public consultation implement होता है on the ground. So there is a big difference between the procedure and the implementation of it. Also, can you talk about the changes which are being made in the public consultation provision in the EIA draft 2020 and also which have been made before? Can you just give us an idea about ओके, that? सो चेंजेस तो एक्चुअली अभी तक पब्लिक कंसल्टेशन में जो 2020 से पहले हुए हैं, वो काफी बेनिफिटिंग चेंजेस हुए हैं। पहले Okay. जैसे कि बहुत सारी चीजें थी, पब्लिक हेयरिंग बहुत ज्यादा प्रोसीजरली डिफाइन नहीं किया गया था, तो धीरे धीरे 2009 में भी आया, इस तरीके के अमेंडमेंट्स होते रहे जिसने पब्लिक हेयरिंग को स्ट्रॉन्ग बनाया है, पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाया है। अब 2020 कैसे उसको थोड़ा रिड्यूस करता है या डाइल्यूट करता है। तो सबसे सिग्निफिकेंट चेंज जो है वो है उसका नोटिस पीरियड। अगर हम 2006 का पब्लिक कंसल्टेशन का नोटिस पीरियड देखें, पब्लिक हेयरिंग का नोटिस पीरियड देखें, नॉट कंसल्टेशन, हेयरिंग में नोटिस पीरियड होता है 30 दिन का, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर उनको नोटिस देना होता है न्यूज़पेपर्स में पब्लिक को कि पब्लिक हेयरिंग होगी। Now, according to me, even when 2020 didn't come, मेरे ख्याल से 30 दिन भी बहुत कम होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पब्लिक कंसल्टेशन का जो होता है वो होता है EIA, ड्राफ्ट EIA, जिसके बेसिस पे Right. पब्लिक कंसल्टेशन की जाती है, क्योंकि अदरवाइज पब्लिक कंसल्टेशन का कोई मतलब ही नहीं है, प्रोजेक्ट के बारे में पता कैसे चलेगा। तो जब उस रिपोर्ट को देखते हैं, वो रिपोर्ट हाईली टेक्निकल रिपोर्ट है, इट इज नॉट इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड इट, टू रीड इट, to make comments upon it. So it is necessary that there should be an understanding of those technicalities. और वो अंडरस्टैंडिंग एकदम से विलेजर्स के बीच में तो बिल्डअप नहीं होती। वहाँ के जो लोग हैं वो लोग टेक्निकल लोगों से बात करते हैं, टेक्निकल लोग लॉयर्स से भी बात करते हैं। सो देर आर मेनी मेनी थिंग्स, देर आर मेनी मेनी स्टेप्स टू इट।
इसीलिए वो टाइम पीरियड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम पीरियड होता है तो लोगों के पास टाइम भी होता है कि वो लोग जाकर बात कर सकें। मैक्सिमम पीपल कैन हैव ग्राम सभा जो होती है, ग्राम पंचायत जो होती है, वो लोगों को बता सके कि नहीं, प्रोजेक्ट आ रहा है, हमारे ऑफिस में उसकी ड्राफ्ट आई रिपोर्ट आई है, उसको देखिए, उसको जानिए, समझिए और पूछिए जिससे भी आप पूछना चाहते हैं। अब जो ड्राफ्ट 2020 है वो इस नोटिस पीरियड को और कम कर देता है, वो 20 दिन कर देता है। जिसको हम बढ़ाने की सोच रहे थे उसने उसको और भी कम कर दिया। अब क्या हुआ? Which means that you are preventing people. 20 days is a very, very short time for any person, even for me, to understand an EIA report of a project, which is so heavy, voluminous and technical. So I think ये बहुत significant change है, जो कि एक बहुत negative change है. This will not bring a positive thing in public consultation process. Right. Okay. One more thing which has been in the limelight, or if you can give us an idea what categorization entails, what is categorization all about? Just a little idea so that this technical thing becomes clearer for the listeners, and also about what are the changes which are being made in this provision in this draft regarding the categorization. Okay, so categorization is the most technical component of the EIA. कैटेगराइजेशन अगर हम 2006 में देखते हैं तो कैटेगरी जो बनाई गई है प्रोजेक्ट्स की, वो उनकी थ्रेशोल्ड कैपेसिटी और उनके पोटेंशियल इम्पैक्ट के ऊपर बनाई गई है। फॉर एग्जांपल 2006 में दो कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी ए और बी। ए वो कैटेगरी है जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से अगर आपको समझाऊं कि 5 मेगावाट से 500 मेगावाट तक के जो प्रोजेक्ट्स हैं, या 500 मेगावाट तक के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो कैटेगरी बी में आ जाएंगे। उससे ऊपर जो है वो कैटेगरी ए में आ जाएंगे। मतलब Okay. उनकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ उनका इम्पैक्ट भी बढ़ेगा। सो ऑन बेसिस ऑफ दिस, जो बहुत हायर कैपेसिटी है उसको ए में रखा गया, जो थोड़ी लोअर कैपेसिटी है उसको बी में रखा गया। ये जो प्रोजेक्ट है उसको ईएसी, जो एमओएफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी होती है वो अप्रेज करती है। बी के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको सिया अप्रेज करती है विद इट्स स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। ओके। Right. एंड उसके बाद कैटेगराइजेशन में भी एक अच्छी बात ये रही है 2006 में, कैटेगरी बी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो जब स्टेट के पास जाते हैं तो उसमें एक स्टेज होती है स्क्रीनिंग की। Okay. स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट्स को देखा जाए कि क्या इनको ईआईए चाहिए या नहीं चाहिए। जिनको ईआईए चाहिए वो उसको बी1 कर देते हैं, जिनको ईआईए नहीं चाहिए उसको बी2 कर देते हैं। अब ये जो बी1 और बी2 है, ये भी पहले प्रेस्क्राइब्ड नहीं था 2006 में। इट वाज कंप्लीटली अपॉन द state expert appraisal committee to scrutinize Okay. and based upon the application, जो project proponent जिस तरीके की EC application देता है उसके बेसिस पे वो लोग देखते थे कि क्या ये इतना ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको EIA चाहिए कि नहीं। तो ये एक पावर दी गई है SEAC को कि वो इसको इस तरीके से स्क्रूटनाइज करें और प्रोजेक्ट्स को डिवाइड कर सके B1 और B2 में। हालांकि Okay. 2013 में थोड़ा सा इसमें प्रेस्क्रिप्शन आया और कुछ कैटेगरीज को B2 कैटेगरी कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल 5 मेगावाट से कम प्रोजेक्ट्स को B2 बना दिया गया और 5 से 500 मेगावाट के प्रोजेक्ट को B1 बना दिया गया, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को। ठीक Okay. है। तो दिस हैज बीन द 2006 का जो मैंने आपको बताया। Right. अब 2020 क्या करता है? 2020 में कैटेगरीज को B1 और B2 को भी प्रेस्क्राइब कर दिया गया है। लाइक कैटेगरी ए, then there is a category B1 and then there is a category B2, right? कैपेसिटी भी चेंज हो गई। अब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो B1 में थे, उनको B2 में कर दिया और कैटेगरी ए में जो थे उनको बढ़ा दिया गया। मतलब कैपेसिटी इंक्रीज कर दी गई है प्रोजेक्ट्स की Okay. और कहीं कहीं पे एग्जेम्प्ट भी कर दिए गए हैं प्रोजेक्ट्स। सो Okay. अब दूसरा इसमें मेजर चेंज क्या हुआ है? दे हैव कंप्लीटली रिमूव स्क्रीनिंग प्रोसेस। मतलब अब स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी प्रोजेक्ट को स्क्रीन नहीं करेगा। जो प्रोजेक्ट है वो B1 का है तो वो स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के पास जाएगा। अगर वो B2 का है तो वो exempted है from all such kinds of। एंड सिमिलरली व्हाट दे हैव डन इज कि पहले जो पावर्स दी गई थी SEAC को कि जब भी कोई एप्लीकेशन उनके सामने आती थी और उन्हें लगता था कि इसको EIA करना चाहिए तो ये B1 होगा, वो वाला पावर कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है। स्टेट हैज नो रोल हियर। Okay. ओके।
नाउ द अदर थिंग इज कि ये एक तो मैंने आपको कैटेगरी बता दी कि कैटेगराइजेशन कैसा है। सेकंड चीज इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स को B2 कर दिया है, ठीक है। और कैटेगरी, और ये जो B2 प्रोजेक्ट्स थे ये अभी 2006 में EIA मांगते हैं। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी अभी EIA भी होती है, पब्लिक कंसल्टेशन भी होता है, लेकिन इन्होंने विदाउट एनी जस्टिफिकेशन उसको B2 कर दिया है। नाउ इट्स बीन कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल स्टेजेस। ना उसमें स्क्रीनिंग होगा, ना स्कोपिंग होगा, ना उसमें पब्लिक कंसल्टेशन होगा, ना अप्रेजल होगा। इट वुड अच्छा। सिंपली गो टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब इसमें भी एक लूप होल है, बहुत बड़ा लूप होल ये है, जो स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटीज होती हैं, ये जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी हम टर्म यूज करते हैं, ये बहुत ही उम्दा अप्रेजल कमेटी है। द रीजन इज दैट दीज हैव एक्सपर्ट्स। ये एक्सपर्ट्स अलग अलग फील्ड से आए हुए हैं एनवायरनमेंट की। यू नो दीज आर, कोई एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में है, वाइल्ड लाइफ में, फ्लोरा में, फौना में, ऑल दीज हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद प्रोजेक्ट्स। हालांकि जरूरी नहीं है कि इनके भी डिसीजंस हमेशा सही हो, लेकिन फिर भी जो जो अप्रेजल होता है एक प्रोजेक्ट का, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एप्लीकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डॉक्यूमेंट्स, दीज आर द पीपल हु हैव द एक्सपर्टीज टू डू इट। नाउ अगर हम B2 के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीटली एग्जेम्प्ट करते हैं और ये सिर्फ सीधे जाएगा रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास, मतलब अप्रेजल कुछ नहीं होगा, सीधे रेगुलेटरी अथॉरिटी एप्लीकेशन देखेगा। अगर उसको लगता है प्रोजेक्ट ठीक है तो ठीक है, हम इसको अलाउ करते हैं। अगर प्रोजेक्ट ठीक नहीं है तो ठीक नहीं है। मतलब जो पूरा टाइम एक प्रोजेक्ट को देखने में और स्क्रूटनाइज करने में जाता था, अब उसको इजी कर दिया फॉर बेनिफिट ऑफ हुएवर। ठीक है, दिस इज वन थिंग। नाउ अगर मैं एक ऐसी कैटेगरी बताऊं, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग, बिकॉज दिस वेरी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट। जैसे इरिगेशन प्रोजेक्ट है, 2000 कल्चरेबल कमांड एरिया 2000 से 10,000 के बीच में, in 2006 it is a project which requires EIA. This is category B in the current EIA notification. Okay. And it has to undergo everything. इसमें EIA भी बनता है, पब्लिक कंसल्टेशन भी होती है, और अप्रेजल भी होता है। ओके, नाउ इस पर्टिकुलर कैटेगरी को कैटेगरी B2 में कर दिया गया है 2020 में। मतलब कि अब उसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो सिंपली रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको चेक करेगी और पास कर देगी। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो ये प्रोजेक्ट्स सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करते हैं। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें लैंड रिसोर्स बहुत चाहिए होता है, एंड इस कैटेगरी के जो प्रोजेक्ट है 2000 से 10,000 के CCA के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा है इंडिया में। तो जितना ज्यादा प्रोजेक्ट बन रहा है उसके हिसाब से तो EIA तो चाहिए इसको। मतलब आई डोंट नो what justification they have exempted this particular project or activity from undergoing the EIA concept. So this is one. उस तरीके से इसी तरीके से उन्होंने क्या किया पहले, मतलब जो ये जो चेंजेस हैं वो बहुत सारे एक्टिविटीज में किए हैं। मतलब इनफैक्ट आई हैव टू सी द होल शेड्यूल टू एक्सप्लेन दिस, बट दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल Right, दैट right. हाउ Get it. इम्पैक्ट। So in a way, they have not only through the changes in these provisions, they have not only diluted the federal framework where a lot of things were with the state authority. They have not only diluted that provision, but they have also diluted the idea of experts, environmental experts dealing with this, and rather made it into a bureaucratic exercise. Exactly. Yes, Right. yes, yes. Okay. Right. Okay, so you talked about scoping, and scoping is an integral part of the approval process. Can you just give us an idea what scoping is? Just a brief idea about that, and also what the changes are being made in this draft to this Yeah. provision. सुमित, स्कोपिंग भी एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है। उसका रीजन मैं बताती हूँ क्यों। जब भी एक एप्लीकेशन प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट EC की एप्लीकेशन मिनिस्ट्री को देता है, तब वो एप्लीकेशन स्क्रूटनाइज की जाती है कि प्रोजेक्ट क्या है, मतलब क्या कहाँ आएगा, कैसे बनेगा, और इसके अंदर इसका इसका द फॉर्म, जो EC की जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही डिटेल्ड एप्लीकेशन है। वो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट से सब कुछ पूछ लेती है विद Okay. रिस्पेक्ट टू दैट प्रोजेक्ट। तो जब EAC बैठता है, उसको वो डिटेल स्क्रूटनी करता है, उसके बाद वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस इशू करता है EIA के लिए कि EIA कैसे बनेगी। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट अगर तैयार करनी है तो वो कैसे की जाएगी।
So this particular scoping is this procedure, is this process, जिसके अंदर detailed terms of reference are being issued by the expert appraisal committee on the basis of the form 1, on the basis of the application which is submitted by the project proponent, right? Okay. Now ये एक अभी तक जितने projects हैं, most of the projects require scoping except a very few in number, like हाईवे प्रोजेक्ट्स को इन्होंने एग्जेम्प्ट किया हुआ था, या कुछ बहुत ही छोटे प्रोजेक्ट्स को इन्होंने स्कोपिंग से एग्जेम्प्ट किया हुआ था, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन नहीं थे स्कोपिंग में, लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट्स इसमें आते हैं, स्कोपिंग में के डोमेन में आते हैं। एक्सपेंशन प्रपोजल्स भी स्कोपिंग में जाते हैं, जो एक्सपेंशन के प्रपोजल्स होते हैं। अब 2020 क्या करता है, 2020 ने Expansion एक of the pre-existing projects, right? या That's द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, जो भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो अपनी कैपेसिटी से अगर इंक्रीज करते हैं, अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, तो दे आल्सो हैव टू अंडरगो स्कोपिंग right. प्रोसेस बिफोर द EAC, बिफोर द SEs। नाउ द थिंग इज व्हाट द 2020 डज, 2020 में उन्होंने एक प्रोविजन दे दिया है, और प्रोविजन ये दिया है कि अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी EC एप्लीकेशन को EAC के पास या SEAC के पास 30 दिन के अंदर अंदर नहीं देती है, तो स्टैंडर्ड TOR के बेसिस पे ये लोग EIA कर लेंगे, इनको इशू कर दिया जाएगा स्टैंडर्ड TOR। अब इसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इससे तुमको क्या परेशानी है, स्टैंडर्ड TOR तो मिल ही रहा है। तो स्टैंडर्ड TOR अगर हम देखें तो वो एक बड़ा ही इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट है, मतलब उसके अंदर क्या है, सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, वो चाहे यूपी में आए, चाहे वो केरला में आए, चाहे वो दिल्ली में आए या तमिलनाडु में आए, उसका स्टैंडर्ड TOR एक ही है। मतलब क्या क्या, कैसे बेसलाइन डेटा कलेक्शन होगा, कैसे प्रोजेक्ट में क्या क्या इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए क्या क्या कौन कौन से इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए टेक्निक्स होंगी, ये सारी जो चीजें हैं वो उसमें दे दी जाती हैं। लेकिन ये समझने वाली बात है कि हर प्रोजेक्ट, चाहे वो कैटेगरी एक ही है, इफ आई एम टॉकिंग इवन अबाउट अ थर्मल पावर प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट भी जहां जाता है, जिस लोकेशन में बनाया जाता है, जिस सराउंडिंग में बनाया जाता है, वो लोकेशन और सराउंडिंग कंप्लीटली अलग होते हैं, दे वेरी। सो एवरी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वेरी फ्रॉम केस टू केस। इट कैन नॉट बी कि अगर एक प्रोजेक्ट दिल्ली में जो बन रहा है उसका जो TOR होगा वो नीलगिरीज में बनने वाले पावर प्लांट से सेम होगा, दिस कैन नॉट हैपन। यही जो स्क्रूटनी है, यही जो डेलिब्रेशन है, वो EAC को लगाना होता है। EAC deliberates upon this thing, that where this project is coming, and if they need that we need to pass a specific TOR for that, तो हम इसमें additional TORs या specific TORs भी दे दें। स्टैंडर्ड TOR सिर्फ एक प्रोसीजर है, मतलब कि एक तरीका है कि इस तरीके से करो, लेकिन Right. स्पेसिफिक TOR या जो TORs EAC इशू करता है, वो एडिशन में भी इशू करता है, ये देखते हुए कि इसकी पर्टिकुलर लोकेशन क्या है, कि क्या इम्पैक्ट कर सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट? तो अब ये जो क्लॉज है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर नहीं देता है उसके EAC के पास प्रोजेक्ट को, तो फिर वो स्टैंडर्ड TOR कर ले। नाउ दिस इज अ वेरी बैड क्लॉज, क्योंकि इस तरीके से तो रेगुलेटरी अथॉरिटी का अगर मन नहीं है तो वो किसी भी प्रोजेक्ट को नहीं भेजे, और मे बी वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को अपने पास रख ले, ये कह के कि नहीं नहीं, इसको तो EAC के पास जाने की जरूरत नहीं है, इसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस की जरूरत नहीं है स्पेसिफिक उसकी, एंड दे कैन be on the basis of the standard TOR. So this is not right. This is जिस तरीके का प्रोसीजर है उसको ये फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा इसमें ये भी है कि इसमें इन्होंने बोला है कहीं कहीं पे कि स्टैंडर्ड TOR जो होता है वो कई बार अप्रेजल कमिटी भी देखता है कि क्या हम इसमें स्पेसिफिक देंगे कि नहीं। ये इस भी पावर को ले लेते हैं, मतलब अगर ये इशू करते हैं तो रेगुलेटरी अथॉरिटी डायरेक्ट इशू करेगा, अप्रेजल कमिटी का कोई रोल नहीं होगा। सो दिस काइंड ऑफ इससे क्या होगा कि इवन प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स कई बार क्या कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट्स को B2 कैटेगरी में दे देंगे पहले, और उसके बाद वो एक्सपैंड कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, लाइक टू एग्जेम्प्ट इट एट द इनिशियल स्टेज कि ठीक है हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का स्कोपिंग ना हो, हम इसको पहले एग्जेम्प्ट करवा लेते हैं, और उसके बाद वी कैन टेक इट लेट, वी कैन एक्सपैंड इट लेटर, तो हम दोनों ही बातों में बच गए स्कोपिंग करने से। So this is how a change has been made in the 2020. Right.
And the idea of exemption not only from scoping, but if in case of expansion of projects, the exemption also comes in other provisions as well, not just scoping, right? No, In no, yeah, yeah. The yeah, exemption comes in at many instances the exemption will come. जिस right. तरीके से कैटेगराइजेशन में जैसे मैंने आपको बताया B2 कैटेगरी जो है, ये ऐसी कैटेगरी है जिसको सभी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ना इसमें स्कोपिंग होगी, ना इसमें पब्लिक कंसल्टेशन होगा, ना इसमें अप्रेजल होगा। ये डायरेक्टली रेगुलेटरी अथॉरिटी डिसाइड करेगी। Talking about the environment management plan, so it basically prepares for negative consequences. And so, do you think that by preparing for negative consequences, it basically exhausts any possibilities for mitigating or avoiding any conditions in the first place? So, for instance, if we have an EMP or environment management plan, does it actually prepare only for the post project issues and effects, and it does not talk about how to avoid those effects in the beginning? And also, do you think that in the punitive measures, if they are, if, as you have written about the pay and proceed model, or I think Pollute model, yeah, pay and pay and pollute and pay pollute. model, Mhm. so do you think that economic considerations are being given a priority in this whole scenario of environment management plan? If you could just give an idea about that. So basically, as the name suggests, environment management plan, it consists of all mitigation measures for each activity. Construction के दौरान, operation के दौरान, उसकी even dismantling के दौरान, जो भी mitigation measures लेने चाहिए, जो project को adverse impact करने से जो prevent करेंगे, वो सब EMP के अंदर आता है। और टेक्निकली देखा जाए तो EMP भी एक बहुत ही अच्छी चीज है, मतलब इट एक्चुअली एक तरीके से प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को ये करने के लिए पहले से ही एक वो दिया गया, एक स्ट्रक्चर दिया गया है कि किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट और एक्टिविटी जो आप लेकर आते हैं, अगर वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और एक्टिविटी का मिटिगेशन आपने ये एडवाइस किया है तो ये फॉलो होना चाहिए। मतलब इफ आफ्टर 10 years और 20 years इफ देयर इज अ प्रोजेक्ट जिसको कंस्ट्रक्शन हो चुका है लेकिन इंस्टॉल जो ऑपरेशन के दौरान ये मिटिगेशन मेजर्स 1 2 3 4 जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को लेने थे और वो नहीं लेता है, और मैं I've come across the violations committed by the project proponent, I can definitely challenge it before the court. So EMP is a good document in that sense. दूसरी चीज ये है कि EMP का इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड कितना होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि नहीं होता। अगर हम देखें तो EMP सिर्फ एक पेपर वर्क बन के रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कई तरीके के ऐसे प्रोजेक्ट्स भी देखे जिसके अंदर एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि मिटिगेशन में उन्होंने लिखा कि ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी और इतनी से इतनी ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी, वो कभी नहीं होता, वो ग्रीन बेल्ट कभी नहीं आती। वो शुरू में सिर्फ दिखाने भर के लिए कुछ ट्रीज या कुछ ट्री की ऐसी स्पीशीज लगा दी जाती हैं जो बहुत बुशी होता है, और फिर उसके बाद वो भी नहीं होता है। सो एट टाइम्स दे डू नॉट कंप्लाई विद द मिटिगेशन एडवाइस बाय देम बाय देयर ओन, क्योंकि EMP EIA की तरह ही होता है। जिस तरीके से आप इम्पैक्ट को एसेस करोगे, उसके बाद उस इम्पैक्ट को कैसे मिटिगेट करना है, ये EMP में आ जाता है। सो बोथ द डॉक्यूमेंट्स गो simultaneously, hand in hand. Lot of times they do not comply with because of many reasons. उसके economic consideration भी आप बोल सकते हैं। In number of activities in the EMP, they advise that there should be a change of technology after a couple of years. कि आप इस टेक्नोलॉजी को बदल दें क्योंकि टेक्नोलॉजी भी एक वैलिड टाइम तक ही काम करेगी। लेकिन प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स नहीं करते, वो एमिशंस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। जितने भी ज्यादा हम आसपास देखते हैं कि पॉल्यूशन हो रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उन्होंने शायद अपनी अपनी EMP कभी फॉलो ही नहीं करी है, मिटिगेशन मेजर्स को कभी फॉलो ही नहीं किया है, इसीलिए एमिशन इतना ज्यादा हो रहा है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है। सो यस, द इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड इज जीरो विद रिस्पेक्ट टू इट। Okay. And what are your observations regarding the norms of self-compliance, also as laid out in this draft, and the overall EIA process in general? इन जनरल अगर मैं बात करूं तो सेल्फ, यू आर आस्किंग अबाउट द सेल्फ कंप्लायंस Yeah. फॉर्म। So for like when you're talking about कि EMP को follow नहीं किया, और उसी से related है कि बाकी जितने भी norms हैं जो कि environmental clearance के लिए इन्होंने जितने भी norms को follow करने का बोला है,
अगर उनकी सेल्फ कंप्लायंस का इसमें आइडिया दिया गया है इस ड्राफ्ट में भी, तो सेल्फ कंप्लायंस का आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? इज इट एन इफेक्टिव मेजर? No, it is not. I don't think so. Not with the number of projects and activities. Although there are good projects also, बहुत सारे ऐसे project proponents हैं या ऐसी industries हैं जिन्होंने self compliance भी अच्छे से किया है. उनके जो जो उनके procedures हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं और वो you know most of them do it. But अगर हम large scale पे देखें जो खासतौर से पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं जो उस कैटेगरी में आती हैं जैसे रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज हैं ऑरेंज कैटेगरी इंडस्ट्रीज हैं इन इंडस्ट्रीज में सेल्फ कंप्लायंस का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत कम रहा है उसका एक और इसमें इसमें सेल्फ कंप्लायंस की जब बात की जाए तो इसमें उन्होंने सेल्फ कंप्लायंस के लिए बोला कि मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स दी जाती हैं मतलब प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जो है 2006 में हाफ ईयरली रिपोर्ट देता था अब इन्होंने इसको इंक्रीज कर दिया है एंड इन 2020 इट हैज बिकम टू एन ईयरली कंप्लायंस सो आई थिंक कि वो जो मॉनिटरिंग है वो बहुत इनफेक्टिव हो जाएगी क्योंकि पूरे साल बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं एमिशंस हो रहे हैं पॉल्यूटेंट्स एक्सेसिव निकल रहे हैं मुझे नहीं पता लाइक आई कांट नो ऑफ इट until and unless the project proponent is going to जो वो डिस्क्लोज करे कि उसकी टेक्नोलॉजी कैसे फंक्शन कर रही है या क्या वो जो मिटिगेशन दिखाया गया है जैसे कि उसको एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने हैं एमएसडब्ल्यू प्लांट्स नॉट एमएसडब्ल्यू बट सॉलिड वेस्ट के लिए जो उनको फंक्शनिंग करनी है वेदर दे हैव दीज मैकेनिज्म और नॉट अब ये मैकेनिज्म कई बार प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट खुल के खुद से नहीं बताएंगे दे विल नॉट कम फॉरवर्ड एंड से नो नो वी वांट टू स्पेंड मनी एंड हैव इट in number of times it's only the monitoring of the offices the central pollution control board the ministry regional offices which go there for inspections and then they come to know that there is a non-compliance of the mitigation measures so self-compliance wala I think maybe because India में maybe there is because अगर मैं इसको compare करूँ बाहर countries के साथ तो मैंने जो मेरा experience है उनके examples को देखते हुए उनका self compliance better है बहुत ज़्यादा because they know that the penalty provisions are so strong that if they will not comply with it they'll definitely going to face the adverse consequences. India में it's like a lot of times because it's politically motivated कि हम कुछ शायद पैसा लेकर देकर काम चला लेंगे कई बार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के साथ भी हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं आवर क्लाइंट्स कम टू अस एंड दे टेल अस कि मेरे पास एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बंदा आया था इंस्पेक्शन करने एंड ही सेड दैट इफ यू कैन गिव मी सम अमाउंट तो मैं इसको तुम्हारी जो मॉनिटरिंग है इसमें मैं पॉजिटिव रिपोर्ट दे दूंगा नेगेटिव नहीं दूंगा सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ इश्यूज हैपन सो दिस इज हाउ या And a connected question is, what is your view on the punitive measures in general in the entire environment protection framework? Are they effective, or how is their compliance? All both of those aspects. अगर हम प्यूनिटिव को देखें तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर अगर कोई भी वायलेशन या कॉन्ट्रावेंशन होता है ईआईए के प्रोविजंस का तो वी हैव द प्रोविजन ऑफ इम्प्रिजनमेंट वी हैव अ प्रोविजन ऑफ पेनल्टी आल्सो पर अगर हम उसको इम्प्लीमेंटेशन में देखें ग्राउंड लेवल पे देखें तो कई बार मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि ज्यादातर वो लोग पॉल्यूट एंड पे मॉडल अपनाते हैं लाइक यू नो even if we pollute no problem we'll pay some amount or whatever it is अभी तक जब तक कोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुए थे एनजीटी से पहले का अगर मैं बताऊं तो बहुत आसान था हम पॉल्यूशन कर देंगे और पे कर देंगे वायलेशन जो है वो बहुत ज्यादा इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं लिया जा रहा था लेकिन एनजीटी ने बहुत इस तरीके के जजमेंट्स निकाले जिसने वायलेशन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली लिया है दैट इफ देयर इज अ वायलेशन एंड ऑफ कोर्स इवन इफ देयर इज अ पॉल्यूट एंड पे मॉडल जो पेमेंट है उस पेनल्टी का वो बहुत ज्यादा रखा गया है कुछ इंडस्ट्रीज के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए तो इसीलिए भी लोग वायलेट करने से अब डरने लगे हैं देयर हैज बीन एन अवेयरनेस अमंग पीपल so this is one thing yeah So because there has been an kind of an culture because they have tried to inculcate a culture of accountability right from the top through NGT.
So now Yeah, there is a better implementation of punitive measures as well as compliance to the norms. एग्जैक्टली एंड ऑल्सो वन एडिशन टू दिस थिंग कि अभी तक एनजीटी में भी जब भी वायलेशन के केसेस आए हैं, फॉर एग्जांपल वायलेशन दो तरीके का होता है। एक है कि क्लियरेंस से पहले आपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, आपने नहीं लिया ईसी, Okay. और एक होता है कि आपने नॉन कंप्लायंस किया है ईसी कंडीशन के साथ, मतलब ईसी में जितनी कंडीशंस है उनके साथ आपने कंप्लाई नहीं करा, तो एक वायलेशन है। तो ज्यादातर जो वायलेशन होता है विदाउट क्लियरेंस वाला, उसमें दो तरीके के व्यू पॉइंट लिए गए हैं। आई एम एक्चुअली टेलिंग दिस टू यू because this has been an experience in past several years कि ऐसा हुआ है बहुत सारे projects में, and it depends from court to court and judge to judge very frankly. So हाई कोर्ट हिमाचल का हाई कोर्ट हिमाचल का एक जजमेंट रहा था जिसमें उन्होंने कंप्लीट डिमोलिशन बोल दिया था एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का, कि नहीं ये बिना ईसी के बना है, इसको कंप्लीटली डिमोलिश करो। सिमिलरली एनजीटी ने भी इस तरीके के बहुत सारे जजमेंट्स दिए कि ये वायलेशन है, अगर ये कंडीशंस के साथ कंप्लाई नहीं करते हैं तो इनको बहुत ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा पेनल्टी का, एंड दे हैड द प्रोजेक्ट ओपोनेंट हैज प्रोवाइडेड इट। नाउ देयर इज आल्सो वन ग्लिच टू इट। समटाइम्स पीपल मेक इट अ फेट अकम्प्ली सिचुएशन कि एक मेरा ऐसा ही एक प्रोजेक्ट था जो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था, जिसको हमने चैलेंज किया था कि इसके पास फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है, इसके पास एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं है, लेकिन उसको अलाउ कर दिया गया ऑन द ग्राउंड दैट द कंस्ट्रक्शन हैज हैपेंड, so much of public fund has been invested, and now it is not the right time to demolish the project, and it should continue, and it is continuing today, it's completed today. So this is how, you know, even it depends from case to case. It's not like that because the law says it, so we are going to follow it everywhere. Right. Okay. One thing which has been in these amendments in this EIA draft 2020 is regarding the validity of clearances. So, Yeah. can you just comment upon the amendment which has been made regarding this provision? या वैलिडिटी को लेके एक्चुअली अभी अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो 2006 में फॉर एग्जांपल 10 साल रिवर वैली का वैलिडिटी है और 7 साल बाकी सभी प्रोजेक्ट्स का है, एंड आई थिंक इट्स 30 इयर्स समवेयर बाइनिंग का। तो ये जो 10 साल 30 साल और 7 साल मैं आपको बता रही हूँ, इसमें प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल अगर एक रिवर वैली प्रोजेक्ट है तो उसको 10 साल में कंस्ट्रक्ट भी हो जाना है और ऑपरेट भी हो जाना है, राइट? ये सिंपल सा वैलिडिटी पीरियड है जो 2006 बताता है। अब 2020 में बहुत मेजर चेंजेस हैं, इन्होंने वैलिडिटी को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया। इन्होंने वैलिडिटी के 3 फेजेस बना दिए, दैट अ प्रोजेक्ट वैलिडिटी वुड बी कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन फेज के लिए इतने साल होगा, फिर ऑपरेशनल फेज के लिए इतने साल होगा, फिर डिसमेंटलिंग फेज भी होगा। 3 अलग अलग फेजेस बना दिए। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? एक तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन फेज की वैलिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। फॉर एग्जाम्पल रिवर वैली प्रोजेक्ट्स का 15 साल कर दिया कि 15 साल में ये बन जाएंगे और ये ऑपरेट करेंगे, राइट? But with the operational phase, they say in the EIA they have it mentions that it would be perpetual, मतलब वो लाइफ साइकिल के लिए हो गया, for the remaining life cycle it would operate. Now there is this problem in this draft कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए नहीं ऑनगोइंग कर सकते हैं विदाउट रिन्यूइंग इट्स ईसी, विदाउट मॉनिटरिंग इट पीरियोडिकली टाइम टू टाइम। सो अगर हम रिवर वैली प्रोजेक्ट भी देख लें या थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी देखें, किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट और एक्टिविटी जिस भी टेक्नोलॉजी के साथ बनता है, आज तो 2020 में बना है, 2050 या 60 या 70 पे पहुंचते पहुंचते वो टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। इट इज नॉट कि वो हमेशा ही एक जैसा रहेगा या उतना ही एफिशिएंट या इफेक्टिव रहेगा। सो इस क्लॉज में प्रॉब्लम है। ऑपरेशनल क्लॉज जो है मुझे लगता है यहाँ पे दिक्कत करता है, क्योंकि इनको ये इसमें बोलना चाहिए कि नहीं, हम इतना टाइम ये ऑपरेट करेगा, उसके बाद इसका ईसी हम फिर से इसको अप्रेस करेंगे और देखेंगे whether it is giving the same kind of efficiency, is it effective or not, and if it is, then yes, it should continue. So it should be in terms like in periodical terms, which is not. Yeah. Yeah, it should be subject to approval from time to time. Yeah, exactly. Right. Because environment conditions will also change. वहाँ की local conditions भी, because environment degradation भी होता है, तो Mm-hmm. it may vary from degree, degree Exactly. to degree. Yeah. Okay. Also, could you just tell us about the Ministry of Forests and Environment? So this
there is an amendment which says that the Ministry of Forest Environment and Climate Change will be able to define eco-sensitive zones. Mhm. Do you think that this what is the significance of this amendment, of its ability to define eco-sensitive zones? सुमित, पहले मैं ये समझाती हूँ कि इको सेंसिटिव जोन्स होते क्या हैं। Right, right, तो sure. बेसिकली जो ईएसजेड होता है वो जोन्स या वो इको फ्रेजाइल एरियाज बोलिए या इको सेंसिटिव एरियाज बोलिए, वो जगह हैं जो हाईली इकोलॉजिकली सेंसिटिव हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेटलैंड्स हो गए हैं, फॉरेस्ट हो गए हैं, या वाइल्ड लाइफ हैबिटाट्स होते हैं, सेक्रेड ग्रोव्स हैं। मतलब इस तरीके के एरियाज जिनको आप टच करेंगे या उनके आसपास कोई एक्टिविटी बनाएंगे तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा बाकी के कंपैरेटिव में। मतलब इफ यू कंपेयर इट विद a land where it is an open land, obviously with an open land and in a forest, if the similar activity happens, there would be the impacts would be severe. It would be really really different. So ये जो eco sensitive zones हैं, मिनिस्ट्री इनको टाइम टू टाइम नोटिफाई करती है। लाइक कुछ एक नेशनल वेटलैंड एटलस बना दिया गया है, उसमें कुछ वेटलैंड्स के नाम आते हैं कि ये जो वेटलैंड्स हैं ये ये इन वेटलैंड्स पे किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट इनके पास किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट और एक्टिविटी हमें नहीं बनाना है टू अ सर्टेन डिस्टेंट ऑब्वियसली। लेकिन अगर हम जो ड्राफ्ट देखते हैं 2020 का, ड्राफ्ट ये कहता है कि सिर्फ उन एरियाज को वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया या जोन मानता है जिनको मिनिस्ट्री नोटिफाई करती है। नाउ देयर इज अ ग्लिच। बहुत सारे ऐसे भी एरियाज हैं जो अभी भी लाइमलाइट में नहीं आए हैं। लाइक वी इवन डोंट नो अबाउट दोज एरियाज व्हिच आर एक्चुअली सेंसिटिव। और ऐसे भी बहुत सारे एरियाज है जिनको मिनिस्ट्री ने अभी तक नोटिफाई किया ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इको सेंसिटिव जोन्स जो टर्म यूज होता है वो प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए यूज होता है। जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है या नेशनल पार्क्स है, उनके चारों तरफ एक ईएसजेड बनाया जाता है, एक इको सेंसिटिव जोन बनाया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि वो इको सेंसिटिव जोन एक बफर का काम करेगा। लाइक कोई भी प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज या ह्यूमन डेवलपमेंट जो उन सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स के बाहर होगा, इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द एक्टिविटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ इनसाइड, राइट? Right, सो right. दिस इज अ बफर। नाउ अब तक बहुत सारे 2002 से बहुत सारे स्टेट्स अपने अपने टाइम टू टाइम अपने स्टेट्स के इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में भेजते रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स है जिन्होंने नोटिफाई नहीं भी किया है। तो अगर हम मिनिस्ट्री के डेफिनेशन से देखें तो मिनिस्ट्री तो उन सभी को एग्जेम्प्ट कर देगा। So tomorrow, if there is a wetland which does not exist in the National Wetland Atlas, or it does not come under the meaning or definition of the ministry, it means that it can be, used as a place where a project or activity can come। मतलब वहां पे आप वहां पे कोई डिस्टेंस ही नहीं रखा जाएगा। और वो अगर मान लीजिए उसको आप डैमेज भी कर देते हैं तो उसकी कंप्लेन कैसे होगी? लाइक हाउ वुड Right, वी नो दैट दिस वाज एन इको सेंसिटिव जोन? So right. this is what where the loophole is. So it's basically a sin of omission, because if they had notified the areas where projects are allowed, that would have kept the not those which have not been notified automatically protected. But Right. since they have made the provision of notifying those which will be protected, it basically endangers all other projects which have not been notified. So the better Exactly. way would have been to just give the idea कि कहाँ पर projects हो सकते हैं, rather than saying कि यहाँ नहीं हो सकते, बाकी सबको फिर endangered छोड़ना. So that's the problem, I suppose. Exactly. Yeah. Okay. Uh, one important aspect about which is also coming under criticism, is about diluting the accountability of the entire process by taking away the right to complain from concerned people or citizens about the non-compliance. Now, Yeah. do you think that the suo motu declarations and observations by the official authorities would be enough for ensuring compliance? Can you just comment on this amendment? See what has happened, अभी तक 2006 में कभी भी इस तरीके का क्लॉज नहीं रखा गया कि सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो या फिर सिर्फ प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट हो जो कंप्लेन करेगा। मतलब व्हाई प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट विल कम एंड कंप्लेन अबाउट प्रोजेक्ट? ये ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, एक फंडामेंटल राइट है ऑफ एवरी सिटीजन कि अगर वो कंसर्न है एनवायरनमेंट को लेके, अगर कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी की जाती है जो उसके सराउंडिंग्स को हार्म करेगी, ही हैज एवरी राइट
to speak about it, to complain about it. Now you cannot dilute these provisions. या इसका मतलब तो ये हुआ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप मेरा मैंडेट ले रहे हैं, जो जो मेरे को जो राइट्स दिए गए हैं उसको आप एक स्टैट्यूट बना के ले रहे हैं, मतलब यू कांट मेक सच चेंजेस. सो बेसिकली अब 2020 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अभी तक हम देखते थे कि कोई भी कर सकता था, क्योंकि एनजीटी में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जजमेंट आया था विच टॉक्ड अबाउट एग्रीव्ड पर्सन, कि एग्रीव्ड किसको माना जाएगा, क्योंकि पहले लोगों ने कहा कि एग्रीव्ड सिर्फ वही होगा जो उस प्रोजेक्ट और एक्टिविटी के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करता है. जैसे मान लीजिए मेरे गांव में वो प्रोजेक्ट आता है और मुझे उस प्रोजेक्ट से परेशानी है या मेरा एरिया डिस्प्लेस हो रहा है उसमें, तो फिर मैं जाके कंप्लेन, मतलब मैं जाके अपील करूंगा एनजीटी में, या मैं कंप्लेन करूंगी किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास. लेकिन एनजीटी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है. एग्रीव पर्सन तो कोई भी हो सकता है, बिकॉज द एनवायरमेंट इज ऑफ ऑल. लाइक इफ आई एम अ टेक्निकल पर्सन, आई नो, मैं जब भी किसी ऐसी जगह ट्रैवल करती हूँ जहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है एनवायरमेंट को लेके, और मैं उनको जाके बताती हूँ कि नहीं नहीं, ये जो प्रोजेक्ट आपके पास आ रहा है, आपको पता है इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या आपने क्वेश्चन किया है, एंड दे से नो, वी आर नॉट competent enough, we don't have that capacity, and I take and I represent their cause. So that doesn't mean I'm not an aggrieved person. I too am a citizen of the country. I too have a constitutional mandate, and therefore I can complain. So ये जो एक clause है 2020 में कि हम इसमें सिर्फ एक कुछ अथॉरिटीज ही करेंगी, या फिर प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट करेगा, या सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, ये सब बहुत फार्स है. दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम एट ऑल. आई डोंट थिंक सो. Because one of the prominent example which is directly not related to this entire issue is that of the crop burning which was happening in cities around Delhi, while it Yeah, was not happening in Delhi, but the in Delhi. air Yeah, quality of Delhi was being affected. it So deteriorated. Yeah. in very literal sense also, the consequences of any environmental degradation are very far reaching, because it affects Exactly. areas far wider than the immediate area. And it Exactly. also plays into the entire issue with which you began. You talked about how environment became a constitutional issue rather than just a technical issue when you were Or talking about statutory the, issue. yeah, Yeah. or just a statutory issue when you're talking about the evolution of the environmental protection framework. And Mm. rather than it being expanded more into that constitutional domain as a constitutionally mandated issue, now Mm. it is in a way being rescinded Yeah. with this particular provision that only certain people have the right to complain and not all Exactly. aggrieved people. So In it's fact, a it would be seen as a regressive law if it it's, comes, if it's been implemented. It's a yeah. regressive law, I should say. So in a way, it just ties up the entire conversation, because we began with how it evolved, and now it's a regressive step, which is taking Yeah. away that whole progress which was achieved. So Mm-hmm. to end our conversation, I would just like to ask. You talked about the evolution of the environmental protection framework and environmental protection discourse. And you also talked about how and of course the way things progress in the legal domain also affect the public domain and the public discourse. People often get their information through the legal developments and through the political developments, and then they become aware. So talking about the EIA draft and all the conversations which are happening currently, a lot of conversations are happening on online media and over different platforms. How do you think, how do you see the current state of awareness and sensitization regarding the entire gambit of environmental issues which is currently in place, and what changes are you seeing right now in this entire scenario? See, if I compare the situation today with something when I got into this field, when I just started in 2009, I think there has been a significant change. I never believed this, because it was like when I came, मुझे जब environment impact assessment report भी पढ़ने दिया जाता था, तो मैं उसको पढ़ नहीं पाती थी, मतलब मुझे समझ नहीं आता था, मैं इतनी टेक्निकल नहीं थी, और मुझे as a legal person it was very difficult for me to get into the technicality of it. And when I see today, and when I even, there are people who are so environmentally aware, even villagers, if you'll go to them and if they have seen a project coming into their place,
they are much aware and conscious about what the EIA says and किस तरीके से baseline data होता है और कैसे impact assessment होता है. They might not get this in English, but there is a vernacular language, local languages में जब वो आता है तो वो लोग समझ पाते हैं, उसको पढ़ पाते हैं. मैं अगर आज के स्टूडेंट्स में देखूं और ऑनलाइन देखूं, इनफैक्ट आज का अगर हम बात करें, जो सारा एनवायरमेंट फ्रेमवर्क में जितना चेंज आ रहा है, लोग इतनी सारी बातें कर पा रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द सोशल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल टू अस. पहले नहीं था. पहले हम सिर्फ जैसे हमने एक बात करी थी मीडिया के बारे में कि मीडिया क्यों नहीं छापता. रीजन वाज कि उस समय मीडिया इतना, एनवायरमेंट कभी भी प्रायोरिटी में रहा ही नहीं है. इवन इफ यू सी टुडे, लीविंग सम वन और टू न्यूज़पेपर्स, बाकी सारे न्यूज़पेपर्स कमर्शियल वाली चीजों पे बात करते हैं. दे डोंट टॉक अबाउट एनवायरमेंट एज सच. सो अगर आज हम देखें तो आज जो स्टूडेंट्स हैं, एंड in fact I was having a conversation with somebody day before yesterday, and he said that do you know, people, like, there are so many comments and objections received by ministry. In fact, there is a lockdown and still it happened. So I think lockdown se to benefit ho gaya, because when we were sitting at homes, we were able to go through each and everything, each and every information what was coming online, what is coming in the news. एंड मेरे पास इतना टाइम शायद तब भी नहीं रहता था जब मैं कोर्ट हियरिंग्स पे जाती थी, जितना टाइम अब है ये सब चीजें देखने का. So I think a lot of things have changed, and it's not that we see locals or villagers or regional people as less trained or less conscious. No, they aren't. क्योंकि अब इतने प्रोजेक्ट्स और इतनी इंडस्ट्रीज इन एरियाज में आ चुकी हैं कि लोग जनरेशन्स के साथ साथ जानना उनको समझ, मतलब उन्हें समझ में आ गया है. पहले जब प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट पब्लिक हेयरिंग किया करते थे, तो वो पब्लिक हेयरिंग में जब उन्हें बताया जाता है, प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जो रिप्रेजेंटेटिव वहां मौजूद होते हैं, वो बताते हैं प्रोजेक्ट के बारे में कि हमारा प्रोजेक्ट आएगा या कैसे कैसे कहाँ आएगा, क्या इम्पैक्ट करेगा. अगर हम पुरानी वीडियोस देखें तो वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, टू मेक पीपल फूल कि नहीं, हम हमारा प्रोजेक्ट जब लगेगा तो वो चाहे वो कोई फर्टिलाइजर की कंपनी हो, कुछ भी कंपनी हो, कि वो एम्प्लॉयमेंट देगा आपकी, आप देखिए कितनी गरीबी है. लेकिन नहीं, आज वो ये बात नहीं कर सकते. इफ दे टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट, पीपल नो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरमेंट. सो यू कांट बी फूल अस. सो आई थिंक अब जो अवेयरनेस है वो जो अब आई है, इट्स अ पॉजिटिव साइन. एंड आई थिंक जो EIA 2020 है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर ये पास भी कर जाता है ये वाला टेस्ट कि ठीक है हम नोटिफाई कर रहे हैं, it's definitely going to be challenged before court. It's definitely going to be struck down. And nobody, in fact, जो लोग हैं, जो civilians हैं, जो अभी जो इस समय जो अब सिनेरियो है, उसको देख के तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये बहुत आगे नहीं जाएगा. It doesn't, I have this hope with me. So let's With that hope. yeah. Fantastic. Thank you so much for sparing so much of your time and to explain everything in detail, because we are seeing a lot of campaigns, but a lot of people are also unaware about the nitty-gritties and the technical details and also the history of the environment protection. So thank you so much for taking so much time and explaining everything so elaborately with examples, because this will help a lot of people. कई लोगों को और एंड सच ल्यूसिड मैनर, तो कई लोगों को बातें समझ में आएंगी, और वो अब, क्योंकि जैसा आपने कहा कि अवेयरनेस बढ़ रही है, तो आगे आने वाले जो भी समय में इससे रिलेटेड इश्यूज और होंगे, तो नाउ दे विल बी बेटर इक्विप्ड, आई सपोज, आई होप, to understand them and to deal with them and raise awareness about them and take action, hopefully, regarding that. Right. Thank you so much, Sumit. Thank you for making me do this, because I think a maximum number of people should actually मतलब मैं चाहूंगी कि बहुत सारे लोग इसको सुने और समझें, और जो अभी तक इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं हो पाए हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, वो पार्टिसिपेट करें आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन. आई थिंक this should help and benefit people at large. So thank you.